السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رائٹ اینگل۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وفاقی بجٹ سن 2021-22 جو کل پیش کیا گیا۔ اس بجٹ کے پیش کرنے کے بعد جو اس کے انز اینڈ آؤٹس ہیں اس پر بات ہو رہی ہے۔ کل بھی ہم نے اینالسٹ سے بات کی، ان کی رائے۔ آج کے پروگرام میں ہم اپنے پولیٹیکل گیسٹ سے ان کا اوپینین لیں گے کہ وہ اس بجٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اپوزیشن کا کیا سٹانس ہے۔ کل اپوزیشن کا اس طرح سے ہمیں احتجاج دکھائی نہیں دیا جس طرح ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں، گو کہ اپوزیشن میں کافی بڑی تعداد ہے، بگ نمبرز، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، اور دونوں میں بظاہر یہی تھا کہ چلیں پی ڈی ایم میں ایک ساتھ نہ صحیح لیکن بجٹ میں ایک ساتھ ضرور ہوں گے اور احتجاج کریں گے آن دا فلور آف دا ہاؤس، لیکن وہ احتجاج اس طرح سے تھا نہیں۔ اس بجٹ میں جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 850 سی سی گاڑیوں کے اوپر ریلیف ملی ہے کہ لوگ اب گاڑیاں خرید سکیں گے، لیکن اور ساتھ میں سوشل میڈیا پہ میں نے کچھ ایسی تصاویر بھی دیکھی ہیں کہ ایک طرف ایک شخص جو ہے وہ اپنی فیملی کو ایک ہی بائک پہ 3-3 4-4 لوگ سوار ہیں کیونکہ ان کے پاس تو وسائل نہیں ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہیں پر اب وہ لوگ گاڑیاں خرید سکیں گے، لیکن ان کے لیے پھر بھی اتنی پرچیزنگ پاور ان کی شاید نہ ہو کہ وہ گاڑیاں خرید سکیں۔ پھر بلا سود قرضوں کی بات ہوئی ہے کہ جی بلا سود قرضے دیے جائیں گے، یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ گردشی قرضوں کی بات ہوئی۔ گردشی قرضے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، عرصہ دراز سے رہا ہے اور ہمیشہ ختم ہونے کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ ہی گردشی قرضے وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر اور مراد ہیں، ریلیفز ہیں جو اس بجٹ کے ذریعے گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ہم دے رہے ہیں۔ کل پرائم منسٹر صاحب سے ایک صحافی نے جب وہ قومی اسمبلی میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پہ پہنچے پارلیمنٹ بلڈنگ میں، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ عوام دوست بجٹ ہوگا، تو انہوں نے رک کر کہا کہ جی یہ اس بجٹ سے سب خوش ہو جائیں گے۔ تو کیا سب خوش ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جن کا کل ذکر نہیں ہوا۔ شوکت ترین صاحب نے کل باریکیوں میں جا کر ان کی تفصیل نہیں بتائی، اس سے پہلے بجٹ میں ہمیں وہ تفصیلات کے بارے میں بتایا جاتا رہا، لیکن کل شاید اس وجہ سے بھی ذکر نہیں ہوا کیونکہ صرف ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ذرا کہتے ہیں کہ جی اچھی خبر ہے یا سب اچھے کی خبر ہے، اس کے بعد یہی تاثر جائے۔ وہ کون کون سے آئٹمز ہیں ان پر بات کریں گے جن پہ سیلز ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور سیلز ٹیکس لگانے کے بعد یہ بیسک ضروریات ہیں، کوئی لگژریز نہیں ہیں جن پہ لگایا جا رہا ہے، جیسا کہ سیلز ٹیکس کی جو چھوٹ تھی انڈوں پر، گھی، دودھ، جوسز، فروزن گوشت اور اس طرح کی اور اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی کیونکہ سیلز ٹیکس لگے گا، تو ان اشیاء کی پرائسز جو ہیں وہ بھی اوپر جائیں گی۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ امید تو یہی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ امید ہے کہ ہم مہمانوں سے بات کر پائیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جی امید پہ دنیا قائم ہے، امید رکھنی چاہیے، اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ اچھے کی امید کی تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی اچھا ہی ہوگا۔ ہمارے معزز مہمانوں سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا ہے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے آفتاب جہانگیر صاحب نے۔ آفتاب صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے کھیلداس صاحب نے۔ کھیلداس صاحب ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو کل قومی اسمبلی میں موجود تھے کہ جب یہ بجٹ تقریر پیش کی جا رہی تھی۔ آپ کے بہت بہت شکریہ کھیلداس صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے تیمور تالپور صاحب نے۔ تیمور صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے آفتاب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جناب پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ سب خوش ہو جائیں گے، اور بجٹ میں گاڑیوں کے علاوہ کچھ اور ریلیفز کا ایڈ ہاک الاؤنس کا اناؤنس ہوا سرکاری ملازمین کے لیے، گردشی قرضے ختم ہونے کی بات ہوئی، لیکن ساتھ میں یہ کچھ سیلز ٹیکس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم ہو گئی ہے عام کموڈیٹیز پہ جیسا کہ انڈے، گھی، دودھ، جوسز، فروزن گوشت۔ بہت شکریہ علی بھائی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا بات کرنے کا، اور کھیلداس کو، تیمور کو میرا سلام۔ اچھا دیکھیں، بات یہ کہ میں نے آج بہت سارے جو اکنامسٹ تھے دوست میرے، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ ایماندارانہ رائے دیں کہ یہ بجٹ کیسا ہے، تو آپ یقین کریں کہ میں نے جن سے بھی پوچھا وہ کہتے ہیں یار کہ یہ پچھلے 3 سالوں میں سب سے بہتر بجٹ آیا ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ اب ہمارے جو ملک ہے وہ صحیح سمت کی طرف چل پڑا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ جب چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں تو یقیناً اس سے آگے آنے والے وقتوں میں اور آسانیاں پیدا ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح بہت سارا ریلیف دیا گیا ہے تو اس سے آپ کی معاشیت کی صورت بہتر ہو جائے گی، آپ کی اکنامک صورتحال بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن آفتاب صاحب آپ نے یہ بھی کیا اپنے جو جاننے والے اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں ان سے یہ بھی پوچھا کہ سیلز ٹیکس جو یہ لگایا ہے، سیلز ٹیکس اگر لگے گا ان اہم کموڈیٹیز پہ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، میں نے آپ کو گنوائیں، تو اس سے تو پھر پرائسز ان کی اوپر جائیں گے، یہ ایک عام آدمی کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں۔
अच्छा देखिए, अभी ये तो यकीनन मैं तो अभी अपने हल्के में था, अभी आपके इससे सुना है, और अभी इस पे बहस भी होगी पार्लियामेंट के अंदर, हम अपनी राय बिल्कुल देंगे। अगर हम कोशिश तो ये करेंगे कि जी आम आदमी को जितना रिलीफ दे सकें दिया जाए। तो अगर कोई ऐसी चीज सामने आई तो उस पर अपनी पूरी मुकम्मल ईमानदाराना राय भी देंगे, जो आप सबकी में भी आएगी। क्योंकि मैं हमेशा अपनी बात बिल्कुल बहुत ही क्लियर करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर इन चीजों के ऊपर हमने चीजों पे लगाई तो उसकी कोई लॉजिक होगी, तो मतलब वैसे ही लगाया गया है, और उससे तो यकीनन असरात अच्छे नहीं पड़ेंगे। आम ठीक आदमी को तो रिलीफ देना है, और ये हमारा मिशन भी है, प्राइम मिनिस्टर का भी मिशन। ठीक है। केलदास साहब, आपने आफ्ताब साहब का आपने उनका ओपिनियन सुन लिया। वो कहते हैं जी हमारा ये मिशन भी है, हमें पता है कि आम आदमी को रिलीफ देना है, और अगर कहीं पर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लग रहा है कि ठीक नहीं है तो आगे उस पर बहस होगी और उसमें रद्दोबदल की गुंजाइश है। देखें, पहली बार मैंने तब साहब का आवाज भी नहीं सुना, आपका भी सवाल मैं समझ नहीं सका हूँ। मेरी मैं दोबारा दोहरा दूं आपकी केलदास प्रोग्राम की साहब, मुझे अगर आपको मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे रही है तो मैं सवाल दोहरा देता हूं। जी केलदास साहब। जी जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी सवाल करें सर आप जी अपना। मैंने ये कहा कि आफ्ताब साहब का ये कहना है कि हमारा ये मिशन भी है कि महंगाई कम हो, एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, और आगे जब इस पर बहस होनी है कौमी असेंबली में इस बजट पर, तो कहीं पर अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो काबिल एतराज़ हैं तो उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि बस वो जो कह दिया वही होगा। देखें अली मुमताज साहब, कल जब बजट पेश की गई, ये पाकिस्तान की तारीख की अनोखी बजट थी। जब सबसे बड़ा, जो मैं भी असेंबली में जब दाखिल हो रहा था, मुझे जो लोग मिले रास्ते में असेंबली के बाहर, बल्कि असेंबली के मुलाजमीन, सबसे पहला सवाल ये था कि मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि लास्ट ईयर तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई मुलाजमीन की। और हजारों की तादाद में जब बजट पेश हो रहा था तो असेंबली के बाहर एहतजाज हो रहा था। MNA, इनके वजीर मुशीर बाहर निकलने के रास्ते, पीछे रास्ते से निकल गए। ये पहली दफा हुआ है। तो मैं समझता हूँ अवाम की तो ये होना चाहिए था 10% की बजाय 30 सैकड़ों जो है रिलीफ दिया जाता मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजिम। जितनी ये कहना महंगाई आसान है 3 सालों खेलदार में साहब, इन्होंने की लेकिन है। रिलीफ देना फिर कहने में और देने में फर्क है ना। वरना तो इस तरह ये भी कहा जा रहा है कि जी 20,000 रुपया जो बढ़ाया गया है, कम से कम उजरत 20,000 रुपये, वो 20 नहीं 35 होनी चाहिए थी। मैं यही कह रहा हूँ, जितनी इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, जितनी इन्होंने मईशत की तबाही की है, जो आज पाकिस्तान का आम आदमी परेशान है। तो दूसरी बात मैं जो आपको बताऊंगी, जो सबसे बड़ा, ये इन्होंने 3 साल में जिस तरह IMF में पाकिस्तान के वो चुंगल में जिस तरह इन्होंने फंसाया है, असद उमर की नाकाम पॉलिसी हो या शफी शेख की। अभी तो IMF का बजट आना है, मिनी बजट, वो भी अब बाद में आएगा, ठीक क्योंकि है। इन्होंने एक ये कंप्लीट नहीं किया, ये नहीं बताया, क्योंकि ये अभी बातें इनकी भी रहती है। वो बजट के बाद एक और IMF बजट भी आएगा, जो नए टैक्सेस ये कह रहे हैं कि हमने नहीं लगाए। तो आप देख लेना कि आने वाले दिनों में किस तरह टैक्सेस का भी बोझ पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो बजट में जो ये इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने ट्रीन जो माहौलियाती तब्दीली है उसमें बड़ा हमने काम किया है, उसके लिए सिर्फ 4.25 अरब रखे गए, जो ये अरबों रुपए की ट्री मंसूबे ये इस तरह बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बहुत सी PMLN नवाज शरीफ साहब के दौर की जो स्कीमें थी, उनको यूथ लोन हो या बाकी स्कीमें, उनको खत्म किया गया है, बंद किया गया है। और जो हम सब्सिडी देते थे काश्तकारों को, तो मैं समझता हूँ इनका बजट जो है ना, ये अवाम दुश्मन बजट है। और ये जब कल पेश हो रहा था अली मुमताज साहब, इनके काफी MNAs की कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्लिपिंग नहीं थी अपने ही वजीर की जब वो बजट पेश जी कर ये रहे आपने थे। सही कभी कहा। कुछ लोग गाना गा रहे थे, कुछ एहतजाजों पे हमला कर रहे थे। आफ्ताब साहब भी उस वक्त मौजूद थे, मुझ पे भी हमला करने की कोशिश की इनके MNA कराची के असलम खान ने, मोबाइल छीनने की कोशिश की, और हमारे खवातीन मरियम औरंगजेब बाकी पे हमला किया। तो ये जो बौखलाहट है PTI की, अगर जो अच्छा बजट है तो खामोशी से सुनते, और खुद ही उसमें संजीदा नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कल जो कुछ महंगाई का तूफान इन्होंने पाकिस्तान के अवाम पे फेंका है, तो ये मजीद ठीक पाकिस्तान है, के लेकिन अवाम के लिए केलदा साहब, मसाइल होंगे। तैमूर तालपुर साहब की तरफ जाने से पहले ये भी बता दें, आप कल सब थे कहां पर? आप लोगों की तादाद थी नहीं उतनी, वो हमें एहतजाज नजर ही नहीं आया कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑपोजिशन एहतजाज करेगी। जी केलदा साहब। जी जी मैंने ये अर्ज किया कि जी कल आपकी ऑपोजिशन उस तरह से नजर नहीं आ रही थी
ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بڑا پرزور احتجاج ہوگا. مجھے اصل میں آپ کی سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں ایک بات اور بھی کہہ دوں. میرا تعلق سندھ صوبے سے ہے اور سندھ کے جو منصوبے ہیں اس میں ایک تو جو بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں صوبوں کے لیے اس میں سندھ کے 87 ارب روپے کاٹے گئے ہیں. سندھ میں کوئی جو چوتھے نمبر پہ سندھ کو رکھا گیا ہے جو وفاق کے ترقیاتی کام ہونے ہیں جو منصوبے ہیں اس میں سندھ کو مکمل نظر انداز کیا گیا ہے. سندھ کا شہر جو سب سے بڑا شہر کراچی ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس بجٹ سے جو انہوں نے پیش کیا ہے اس سے بڑی افراتفری اور انتشار پھیلے گا. انہوں نے جو فیصلے لیے ہیں اور جو ٹیکسز لگیں گے عوام پہ یہ بوجھ جو بڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ مکمل طور پر عوام دشمن بجٹ ہے اور اپوزیشن پوری کوشش کرے گی کہ اس بجٹ کو پاس کرانے نہ دے. ٹھیک ہے تیمور تالپور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ علی ممتاز صاحب. بالکل جی بہت سی باتیں کی گئی. پرائم منسٹر نے بہت بڑے بڑے کال کی باتوں کی پر فیل میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے. ہم سمجھے کہ شاید 3 سال کے بعد یہ چوتھا بجٹ پیش کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت. یہ شاید کچھ نہ کچھ ریلیف دے گی لوگوں کو پر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ان کو 24% انکریز ٹیکسز لینے ہیں. کوئی یہ کہاں سے 1230 بلین کا یہ بنتا ہے تو یہ تو وہی بیچارہ غریب آدمی وہی آپ کا بیچارہ جو ٹیکس پے رہا ہے اسی کو دینے پڑیں گے نا. جی ہاں. تو یہ کیسے دیں گے؟ دس از اے بگ کوشچن. دس از اے بگ کوشچن ٹو بی آنسرڈ. سیکنڈلی مین جو مسئلہ آپ کا آج ہے وہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا مین مسئلہ ہے آف انفلیشن. آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارا ٹارگیٹ تھا آف انہوں نے ہمیں 6% کا کہا تھا جی تو 6% کی جگہ پہ یو سو دیٹ وی ایکچولی چارج ڈبل ڈیجٹس یعنی کہ جب 6 کہا تھا تو 11 کیا. اب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سے چارج کریں گے. انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ ہوگا 8% پہ یعنی کہ 6 پہ اگر 11 جا سکتا ہے تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ پھر سے 8 کا کہہ کے اور ہم سے وہی زیادتی کریں گے اور پھر کوئی 16% میرے خیال سے کے قریب ایسٹیمیٹ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جائے گا. اچھا یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کافی چیزوں میں آپ لوگوں کو جو ہے سو ریلیف دے رہے ہیں. ایک انہوں نے وہ الزام ہمیں کہا ہے کہ وہ ہمیں ریلیف دیں گے ان دا مین لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر. اب ایک طرف لو کاسٹ ہاؤسنگ میں ہمیں کہہ رہے ہیں وہ کریں گے پلس آپ اگر پھر چیک کریں کہ آج سیمنٹ کی پرائسز کہاں پہنچی ہوئی ہیں تو جو بائی پروسیریہ کی پرائسز کہاں پہنچی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا ان کی ایک چیز کا دوسری چیز سے بہت بڑا کانفلکٹ ہو رہا ہے. ہمارا میجر جو سیکٹر ہے ایگریکلچر کا اس کو صرف اور صرف 12 ارب دیے گئے. مطلب یہ کہاں کی زیادتی ہے؟ آپ اپنا کمپیئر کریں ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو اگر انڈیا کے ساتھ تو وہاں پر جو سبسڈی دی جاتی ہے فرٹیلائزر کی وہاں کی پرائس ہم سے آدھی ہے. وہاں پر ہمارے پاس بجلی کے ریٹس بہت ہائی ہیں اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے. انڈیا میں فارمر جو پانی بورنگ کے تھرو استعمال کرتا ہے ان کی لفٹ استعمال کرتا ہے پانی کی ان کا بجلی وہاں پر فری ہے. تو بہت بڑی زیادتی تو یہاں پہ ایگریکلچر کے اوپر ان لوگوں نے کر دی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کیسے اس سے بھی ہم ریکور کریں گے کیونکہ اس سال قدرتی ایک اچھا کراپ تھا ایک بمپر کراپ تھا. ہم سمجھے ایک تو ہمیں یہ دیتے ہیں گروتھ ریٹس. انہوں نے ہمیں کہا 5% کا آلموسٹ گروتھ ریٹ ہے اور ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہتے ہیں 1.5 ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ 2% گروتھ ریٹ ہے. ہر جگہ پر آپ عوام کا لوگوں کا بیوقوف نہیں بنا سکتے. ابھی جو انہوں نے ٹیکس لگایا ہے شوگر پر اس سے کوئی 7 روپے فی کلو جو ہے قیمت بڑھنی ہے شوگر جیسے بہت سے اور آئٹمس کی. تو میں ویسے آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ اتنے جو ٹیکسز جیسے کہ 24% کی جو انکریز ہے وہ تو وہی غریب آدمی کے ہاتھ سے نکل رہی ہے نا. آپ کے فون پر ٹیکس لگا دیا ہے. آپ کی 3 روپے کی سے اوپر جتنی کال ہو منٹ 1 روپیہ چارج کریں گے. آپ کی جو ہے ایم بی جو ہے یوز کریں گے انٹرنیٹ اس کی اپنا جو ہے تو اب سے 5 روپے ٹیکس چل رہے ہیں. حالانکہ یہ کہہ رہے تھے کہ انٹرنیٹ کو ان کی یوز وہ فی الحال تیمور صاحب وہ فی الحال روک لیا گیا ہے. وہ فی الحال روک لیا گیا ہے پر اس کو بجٹ سے نہیں نکالا. اس کو روک دیا ہے کیبنٹ نے پر اس کو بجٹ سے انہوں نے نہیں نکالا. یا تو یہ ڈیلیٹ کر دیں اس کو. تو یہ بہت سی جو چیزیں ہیں یہاں پر اب ہمارا جو پورا بجٹ آ رہا ہے اگر اب اس میں سے حساب لگائیں 30% آف آر بجٹ از گوئنگ بیک
इन द पेमेंट ऑफ द लोन्स दे हैव टेकन। ये हम पे इल्जाम लगाते हैं हमने लोन लिए थे ना, अभी इनके लोन्स है जिनकी 36% पूरा बजट में से जो है सिर्फ उनकी जो है रिटर्न में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स है हमारा 16% आप दे रहे हैं डिफेंस को, तो बाकी बचा के आपके पास पूरे आपकी जो है वर्किंग के लिए आपकी डेवलपमेंट। अच्छा, ऊपर से क्या कर दी इन्होंने, इतनी ज्यादा टैक्सेशन डाल दी है और डेवलपमेंट इन्होंने इस साल 21-22 में 40% से इंक्रीज की दी है। यही इमरान खान था ना जो कहता था बाकी सब वादों के साथ साथ के डेवलपमेंट बंद करूंगा, पहले इकोनॉमी को मैं सस्टेन करूंगा फिर डेवलपमेंट करूंगा। तो अब क्योंकि इनके 3 साल से ज्यादा पूरे हो चुके हैं और इलेक्शन ईयर आ रहा है, तो ये बाकी जो 1-2 बातें रह गई थी उनसे भी मुकर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी ज्यादती, आपका जो सूबा जो आपको 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, आपने उन्हें कोई नई स्कीम नहीं दी। यही बात खेलदास साहब ने भी की है। तैमूर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर। और जो आपने और खेलदास साहब ने पॉइंट्स रेज किए हैं, आई बिलीव आफ्ताब साहब तो शायद उनको नहीं सुन पाए, लेकिन मैं वो तमाम पॉइंट्स जो हैं उनको दोहरा दूंगा आफ्ताब साहब के लिए जब वक्फे के बाद हम वापस लौट के आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में वक्फे से पहले जो हमारे मौजूद मेहमानों ने अपनी राय का इजहार किया, उसमें आफ्ताब जहांगीर साहब आपकी तरफ आते हैं। आप मुझे सुन सकते हैं आफ्ताब साहब? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। चलिए, अल्लाह का शुक्र है जी, आप तक तो मेरी आवाज़ जा रही है। आफ्ताब साहब, आपने शायद सुना नहीं जो खेलदा साहब ने और तैमूर साहब ने कहा आपकी पेश करदा बजट के हवाले से। नहीं सुना ना आपने? मैंने कुछ सुना है, मुझे आइडिया है कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं जरा एग्जैक्ट करके बता देता हूँ। मैं जरा एग्जैक्ट आपको बता, आप ना बताएं, मैं बताता हूँ आपको जी। ये हमारा एक वसीला रहा है हमेशा से कि अगर यही बजट साझेदार पेश कर रहे होते तो खेलदास कहते कि इससे बड़ा बेहतरीन बजट हो ही नहीं सकता था और पेश ही नहीं कर सकता था कोई, समझे ना। और अगर यही बजट नवीद कमर साहब पेश कर रहे होते तो तैमूर साहब यही कह रहे होते, समझे ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुफ्ता इस्माइल साहब ने कल एक टीवी चैनल पे बैठकर क्या कहा, आपने भी यकीनन आपके इल्म में भी ये बात आई होगी, आपने भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन बजट है। जो इनके आप मुफ्ता इस्माइल साहब इनके माहिर इक्तिसादियात भी हैं और कुछ अर्से तक वो वजीर जी, वो तंजन कहा होगा उन्होंने। नहीं, तंजन नहीं कहा, आप ये टॉक शो में कहा है बकायदा, तंजन क्यों कहा है? उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा बजट है। और मैं आपको बताऊं कि अली भाई, मैं कोशिश करता हूं कि मुझे ना झूठ बोलना ना पड़े। अच्छा, ये बताएं, खेलदास साहब पे कल हमला हुआ, इनका फोन छीनने की कोशिश की गई। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं, पहली बात तो ये कि खेलदास साहब जो है ना, मैं ये समझ रहा था कि बड़े मतलब मैच्योर किस्म के शख्स हैं, लेकिन जब और मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, मेरा इनका साथ एक बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक भी है, लेकिन जब मैं इनको कुछ दफा कहीं देखता हूँ ना जब पार्लियामेंट के अंदर, तो ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार नजर आते हैं, समझे ना। वो इसलिए कि देखें, अगर आपने करनी है, एहतजाज करना है, तो आप अपनी सीट पे खड़े होकर एहतजाज करें। आप कैमरा लेकर, जो कि अच्छा नहीं लगता कि वो लेकर आप मूवियां बना रहे होते हैं अंदर, और फिर कल जब ये मूवी बना रहे थे तो मेरे पीछे तक आए, आपको मैं बताऊं, और वहां पर जहां इनकी सीट नहीं है, जहां इनका ताल्लुक नहीं है, वहां पर ये खवातीन के साथ वहां पे आके प्ले कार्ड लेके खड़े हो गए और वो कर रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है हमारी कुछ खवातीन वो काफी अग्रेसिव हो गई, उन्होंने एक SHO का रूप धार लिया। नहीं, SHO का नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब डाकू कहीं घर की तरफ आता है तो फिर क्या करें कोई। अगर अब ये है कि अगर आप अपनी सीट पे खड़े होकर जो मर्जी करें, अपनी साइड से खड़े होकर जो मर्जी करें। देखें, बजट तकरीर हो रही है, कल मैं आपको ईमानदारी की बात, आपके अपने लोग भी तो वहां पर आवाजें लगा रहे थे और फिर उनकी संजीदगी भी नजर नहीं आ रही थी कि सुन ही नहीं रहे हैं कि क्या बात हो रही है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैं अली भाई, मैं तो इस चीज का कायल हूँ कि कल मेरी एक साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने, मैं जब सफर कर रहा था तो मेरे साथ थे पीपल्स पार्टी के साहब थे, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही संजीदा आदमी है, और वो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों से ज्यादा सीनियर भी। उन्होंने कहा कि जी आपने देखा आफ्ताब साहब कि हमारे बैंक से ये इतना ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि एहतजाज ये नून लीग वालों ने अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, आपने डेस्क बजाना शुरू कर दिए, बजट की किताबें टेबलों पे मार रहे हैं। आप बात तो सुने,
बात सुनने के बाद आप उसके बाद बिल्कुल आपको हक हासिल है मंडे से आप अपनी राय का इजहार करें। आपने अभी सुना ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या बात की जा रही है, क्या रिलीफ किया जा रहा है, क्या ड्यूटीज लग रही है, क्या टैक्सेस लग रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक। अच्छा, अभी कुछ टैक्सेस की बात तैमूर साहब ने भी की थी, और फिर ये सिंध के 87 अरब काटे गए हैं, ये खेलदा साहब का कहना था, और कराची को नजरअंदाज किया गया है। तो क्या ये ऐसा ही है तरक्याती डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में? नहीं किया गया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम कर रहे हैं और भी करेंगे, और जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे करेंगे, मुकम्मल करेंगे, कोई नजरअंदाज नहीं किया। और बात ये कि असल में हमारी आदत हो गई है कि हम तनकीद बनाए तनकीद है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप अभी मंडे से बजट आएगा, यकीनन खेलदास से ईमानदारी से पूछेगा ये किताबें उठा के भी लेके गए घर के नहीं गए। चले इतना, मैं तो ये नहीं कह रहा कि पिछले 10 साल की बात नहीं करता, मैं तो पिछले 2 साल के बजट की बात कर रहा हूँ कि उसके मुकाबले में आपने इस बजट को कैसा पाया। अच्छा, फिर ये बजट होता है किसके लिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछेंगे तो उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो जाके बैठ जाते हैं कि अपने चैम्बर्स के अंदर बजट को सुनते हैं। जब उनसे बात की थी वो बड़े मुतमईन है, जब आप स्टॉक एक्सचेंज वालों से बात करते हैं वो मुतमईन है, आप किसान से बात करते हैं वो मुतमईन है। तो मुझे आप बताएं कि फिर किस मतलब कौन है जिसको एतराज है। अगर हाँ कोई चीजें आपके सामने आएंगी तो आप बिल्कुल उसकी निशानदेही करें, अच्छी तजवीज दें, उसको बहस करें। हो सकता है आपकी तजवीज तो आपकी नजर में ये तनकीद बराए तनकीद है? बिल्कुल तनकीद बाय तनकीद। आज मैंने एक साहब से बात की थी, उन्होंने मुझे 2 पॉइंट की तरफ निशानदेही की है। मैंने उनसे कहा है कि ये इंशाल्लाह ये मंडे से जब इजलास शुरू होगा मैं आपकी ये बात जो है पूरे जोर के साथ पहुंचाऊंगा कि जी ये जो आपने जो इसमें चीजें रखी हैं ये मुनासिब नहीं है, इसे खत्म किया जाए या इसे मुनासिब किया जाए। ठीक, खेलदा साहब, तनकीद बराए तनकीद आपकी तरफ से हो रही है और ख्वामख्वाह आप ये सारे नुकात उठा रहे हैं, और फिर जो आपने बताया कि जी मुझ पर हमला हुआ उस पर भी आफ्ताब साहब ने, आप आफ्ताब साहब को सुन पा रहे थे या नहीं? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। चलें, फिर मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। देखें, अली ममता साहब ये मेरे दोस्त हैं, आपको भी इन्होंने बताया, बार बार आपके प्रोग्राम में मेरे साथ भी होते हैं जी। तो बात ये कि जब इनकी खवातीन, और बल्कि खवातीन के साथ इनकी जो कुछ खवातीन थी, बाकी एक कराची से 2 MNA थे, सैफुर्रहमान साहब और असलम खान, उन्होंने हमारी खवातीन MNAs पे हमला किया। ये किसी वो वीडियो बनाने की बात करें आफ्ताब साहब, आफ्ताब से जरा थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना होगा, खेलदा साहब की आवाज जो है वो जरा। मैंने बिल्कुल वीडियो बनाई, वो इसलिए बनाई कि मैं कौम को दिखा के सकूं जो अरबों रुपए की सेशन होते हैं, जो हमारे आप जो जिस तरह मुसल्लत ये किए गए हैं हुकूमत के जो MNA है, इनका हाल देखें। मैं कौम को दिखाना चाहता था और कौम ने देखा कल। और जो कौम जो इस पार्लियामेंट के लिए जो अवाम बात कर रही है वो भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, मीडिया खुद उस पे सच दिखा रहा है। खेलदा साहब बात कर लें, फिर उसके बाद आप ऐड कीजिएगा। तो मैं ये कहता हूं, आफ्ताब साहब मुझे बताएं कि कौन सी अच्छाई है इस बजट में, आम आदमी को क्या फायदा होगा इस बजट से, कौन सा रिलीफ दिया गया है पाकिस्तान के अवाम को। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो बिलासूद कर्जे हैं, सूबे में आफ्ताब साहब रहते हैं, ट्रैक्टर्स लेने के लिए आप कर्जा भी ले सकते हैं, कारोबार करते हैं, सिंध से टैक्स भी यहाँ से देते हैं, और ये सिंध का उतना ही मैं समझता हूँ उसको भी दर्द है जितना हमें। मुझे ये बताएं कि सिंध के साथ जो नाइंसाफी की गई है वो क्यों की गई है? अगर ये सिंध में सबसे ज्यादा रेवेन्यू सिंध का शहर कराची जो हमारा कैपिटल सिटी है सिंध का, वो देता है, वो कह रहे हैं नहीं किया, उसको नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज नहीं किया। 3 साल में इन्होंने कराची की ग्रीन बस जो मंसूबा नवाज शरीफ ने कंप्लीट 90% कर दिया है, उसको बसें नहीं मिल रही, वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, K4 कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो कौन से पैसे रखे गए, किसके लिए पैसे रखे गए? ठीक है, एक सेकंड, यहीं पर बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ी है। यहीं पर जरा आफ्ताब साहब आप इसका ये ग्रीन बस का भी आप ऐड कर दीजिए, जवाब दे दीजिए। खेलदा साहब ने कहा है के लिए और बाकी सूबों के लिए कौन सा मेगा प्रोजेक्ट रखा है, ये भी मुझे बता दें कि ये क्या बनाने, पाकिस्तान नया पाकिस्तान कौन सा बनाने जा रहे हैं, कौन सी स्कीम है। और जो मैंने ये बात की कि माहौलियात के लिए जो ये बड़ी दावा करते हैं उसके लिए सिर्फ 4.25 अरब रखे गए हैं। तो ये किस तरह, मतलब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे जो उन्होंने आवाम को झूठे ख्वाब दिखाए थे, वो कैसे आफ्ताब साहब क्विकली इस पे जरा रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैंने तैमूर साहब की तरफ जाना है। क्विकली जी। तैमूर साहब जी जी जी, आपकी तरफ आ गया। थैंक यू जी।
देखिए जी, जब से ये इन नाअहल करप्ट तरीन लोगों की हुकूमत आई है तो 5 मिलियन लोग जो है अनएम्प्लॉय हुए हैं 3 साल में। अच्छा, 2 करोड़ लोग जो है पॉपुलेशन पहले से ज्यादा बिलो द पॉवर्टी लाइन चली गई है। दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स रिकग्नाइज्ड बाय एवरीवन एंड एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। अब इन हालात में ये जी जनाब अली लाए हैं 210 मिलियन का बजट पीएम हाउस का। तैमूर साहब, हमारा बजट पास नहीं होने देना। अगर ये बजट सही नहीं तो पास नहीं होने देना। जी तैमूर साहब, वो कह रहे हैं पास ना हो। आपको हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि आप और आपके नाअहल तरीन इमरान खान का बजट पास ना हो, और अगर पास हो भी गया ना तो आपको इतनी बददुआएं हैं इस आवाम की। आफ्ताब साहब जरा तैमूर साहब को मुकम्मल करने दें, फिर उसके बाद आप ही की तरफ आना है मैंने। जी तैमूर साहब। ये इनको जो है ना सच बोलते नहीं है, सिर्फ झूठ बोलकर भी सच बोलता है तो इनको सुनना नहीं है। यही तो वजह है जहाँ पर ये पीटीआई वाले जाते हैं खसूसन सिंध में, या तो अंडे खाते हैं या टमाटर खाते हैं। आप ज्यादती करें तो करें, सच की आवाज तो कम से कम निकलने दे ना। मैं बता रहा था जो उन्होंने हालत कर दी है पॉपुलेशन की हमारी, और 2 करोड़ लोग इन लोगों ने पॉवर्टी लाइन में डाल दिए हैं। और उन टाइम पर उन्होंने बजट क्या एलोकेट किया पीएम हाउस का। पीएम हाउस है या कोई अपना शेख मोहम्मद का महल है जिस तरह की ये कर रहे हैं। अच्छा, बातें करते हैं चीजें सस्ती करने की। पेट्रोलियम पे लेवी डाली है 600 बिलियन की, यानी कि जो लेवी 5 रुपए थी अब ये 20 से 25 रुपए फर्दर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जाके अफेक्ट करेगी। इन हालात में आप बजाय इसके कि आवाम को कुछ बेहतर करके दें, आपने जो है यहाँ पर नैब के लिए क्या बजट रखा है आपने देखा है? नैब से रिकवरी तो कोई नहीं हुई, पर नैब ने जो है 5.13 बिलियन आपने एलोकेट कर दिया नैब के लिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप जो अपनी सियासी कार्रवाइयां करते रहे। वो 22 महीने से खुर्शीद शाह साहब बेचारा जेल में बैठा है बगैर किसी एविडेंस के। आज उसका बेटा पहली बार एमपीए बना है, यंग गाय, उसको अरेस्ट कर लिया है नैब कोर्ट के थ्रू। तो ये अपनी हरकतें तो इनको सुधारनी नहीं है। अच्छा, सूबों के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि सूबों को ये राइट नहीं है। सिंध का जो हाल कर दिया है, यही तो वजह है कि 13 में से 12 इलेक्शन ये हारे हैं। ये अली भाई वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड चेक कर लें जो फेडरल गवर्नमेंट में रहते हुए 95% सीटें हार गई। मैंने आप हिसाब लगे ना, 12 सीटें हार गई, 13 में से। कराची में इनका क्या हाल हुआ है, पूरे सिंध में इनका क्या हाल हुआ है? क्योंकि ये जो जातियां कर रहे हैं, पानी का शेयर यजीदों का काम है अली भाई, पानी रोकना, पानी का शेयर रोकना। 36% ये जो है हमारा लॉस दे रहे हैं सिंध को, और उसके बाद उसके ऊपर टीपी लिंक कनाल खोल रहे हैं जो कि एक फ्लड कनाल है। फ्लड कनाल सब जब पर ऑलरेडी पीने का पानी नहीं है। तो ये इनको इनकी पॉलिसीज का जो ना वो जवाब। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, आप सिंध के रहने वालों के लिए क्या रिलीफ देंगे अपना बजट आपका जो आएगा, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम के बाद आपके पास काफी कुछ है जिस पर आपको ही रिलीफ देना है। आप देखेंगे हमारी सैलरीज इनसे ज्यादा इंक्रीज होंगी, आप देखेंगे हमारी पेंशन इंक्रीज होंगी, आप देखेंगे जहां जहां पर हम रिलीफ जो दे सकते हैं हम देंगे। हालांकि हम पे बहुत फाइनेंशियल क्रंच डाला गया है, हमारा राइट, हमारे पैसे हमारे सूबे के हमें नहीं दे रहे। इन्होंने अनाउंस तो कर दिया कि 3.4 ट्रिलियन। अच्छा, इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग तैमूर तालपुर साहब, ये जो आपने कहा सूबे के जो रेवेन्यू के राइट्स हैं, ये तो जो एनएफसी हुआ था, एनएफसी अवार्ड हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट इट, उस पर शौकत तरीन साहब भी थे कि जब ये एनएफसी अवार्ड हुआ था। मेरे ख्याल से शायद शौकत तरीन साहब ही होंगे, और उस वक्त भी हमारे अपनों भी बड़ा रेजिस्ट किया था एक एरिया से इसको, पर आसिफ जरदारी साहब की और प्राइम मिनिस्टर की बड़ी कोशिशों के बाद, आपको पता नहीं, आप सोच नहीं सकते कहाँ कहाँ से हिंड्रेंसेस थी और कहाँ कहाँ से प्रेशर था कि ये जो है ना दिया जाए, 18 अमेंडमेंट ना दी जाए, ये वफाक के पास ही रहे। और यही आज एक वजह है मेरे ख्याल से कि सिंध जो भी तरक्की कर रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो इसी की वजह से। अगर आज पीटीआई के हाथ में होता तो आपने देखा है जो हशर इन्होंने हमारे सूबे का किया है, तो हम तो हमारे पास तो शायद गैस और बिजली के भी पैसे नहीं होते हुकूमत के भरने के लिए। ये तो शुक्र है अल्लाह का, जरदारी साहब ने बहुत ब्रॉड माइंडेड स्टेप लेके अपने साथ के जो प्रेसिडेंट थे वो भी पीएम को दे दिए, और उसी टाइम जो है सो इनको भी दे दिया। और आपको याद होगा हमारी हुकूमत में 100% हमने सैलरीज बढ़ाई थी एम्प्लॉइज की, 150% हमने जो है। तैमूर साहब, क्या ये एनएफसी अवार्ड पर अमल दरामद हो रहा है जो तय हुआ था कि जिसके सूबे में से जो चीज जनरेट हो रही है उसको रेवेन्यू जाएगा, रॉयल्टी जाएगी? तैमूर साहब
जी तैमूर तालपुर साहब, आवाज आ रही है आपको? आफ्ताब साहब आपकी तरफ आता हूं, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी मुझे आ रही है। ये एनएफसी अवार्ड पर अमल दरामद हो या नहीं हो रहा है? बिकॉज वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी फंड्स की कमी है, फंड्स नहीं है। तो अगर एनएफसी अवार्ड जो हुए थे उस पर अगर अमल दरामद हो रहा हो तो फिर तो रेवेन्यू जो प्रोविंस जनरेट कर रहा है उसको रेवेन्यू मिलेगा। अच्छा देखिए, जो चीजें तय हैं वो तो मिल रही हैं सबको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर ना मिल रही होती तो ये कितना शोर मचाते। ये बैठते हैं मीटिंग्स में, बैठते हैं, वजीर आला साहब जाते हैं और वहां से अपने हिस्सा ले आते हैं, लेकिन आगे हिस्सा जाता किधर है ये नहीं पता। लेकिन देखिए, वफाक ने एक चीज तय की है। वफाक ने जो है कि उन्होंने कहा कि जो भी तरक्याती काम होंगे वो वफाक जो है सूबे को ये मांगते हैं पैसा, कहते हैं कि हमें दे दो पैसा, हम खुद खर्च करेंगे, और आवाम कहती है इनको मत देना। तो फिर भाई वफाक ने ये फैसला किया है कि वो जो इदारों को देंगे, इदारों के जरिए जो काम करवाया जाएगा। सबसे बड़ी तकलीफ इनको यही है कि इनके हाथ में पैसा नहीं आ रहा, ये जो ये चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं लोगों से मिलता हूँ। अली भाई, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, ये तो वैसे ही थोड़ा सा हो जाता है कभी, लेकिन मैं लोगों से मिलता हूँ। लोग जब सिंध के लोगों से। तैमूर तालपुर साहब कुछ कह रहे थे जी, तैमूर तालपुर साहब की ऑडियो नहीं आ रही। तैमूर साहब कुछ कह रहे थे जी। तैमूर साहब, यू कैन ऐड द सेंटेंस सर यू वांटेड टू। जी जी, आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि सिंध को पैसा नहीं देंगे, सिंध हुकूमत को पैसा नहीं देंगे। तो फिर आप कह देना कि इमरान खान ने झूठ बोला था जब उसने कहा था कि मेरा पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही नजर से देखूंगा। आप पंजाब को पैसे देंगे, हालांकि वहाँ पे सबसे ज्यादा करप्शन है। आप पैसे देंगे बलूचिस्तान को और केपीके को, जहाँ पे ट्रिपल करप्शन है। और आप सिंध को पैसे नहीं देंगे क्योंकि आपका दौरा मयार है, क्योंकि आपने जी आफ्ताब साहब निकाल लिया है। और आप यकीन करें अली भाई, मैं तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं केपीके के लोगों से जब मिलता हूं, अच्छा एक होती ना बात, मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूं, मैं हल्फन बात कह रहा हूं कि मैंने कल इमरान खान को और उसके लोगों के हलफ को कोई मानने को तैयार नहीं है भाई। यार बात तो सुन लो। जी जी आफ्ताब साहब, क्विकली जरा हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, 1 मिनट रह गया है। मैंने से बात कर रहा था, मैं कह रहा था यार आप अपनी ईमानदारी से बताओ कि ये जो आपके वहाँ के हालात क्या है। वो कहते हैं आफ्ताब भाई इतने अच्छे हालात हैं, हमारे यहाँ बहुत काम हो रहा है। अच्छा, अगर नहीं होता तो तोबा। मैं तो वो बात कर रहा हूँ, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा कि मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन इमरान खान वाला हलफ शिकायत करते ना, कहते कि यार हमारे भी बड़े बुरे हालात हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं, हम तो मैं तो कल भी मैंने पार्लिमानी मीटिंग के अंदर कहा है कि जी कराची के हालात अच्छे नहीं है, आपको कराची के लिए एक्स्ट्रा, सिंध के लिए एक्स्ट्रा। चलें आफ्ताब साहब, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है माजरत के साथ, वरना तो इस पर डिस्कशन मजीद भी 1 घंटा क्या कई घंटे चल सकती थी। खेलदास साहब आपका, तैमूर तालपुर साहब आपका और आफ्ताब जहांगीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।